Hello class 5. Today in geography we will continue chapter 8, the deserts. In this chapter we had already discussed about the hot deserts, its geographical location and climate. Today we will discuss about the wildlife and the human activities of the hot deserts. So let's start. The camel is a very useful animal found in some deserts. It has adapted itself to the desert climatic in many ways. The camel is also called the sheep of the desert. तो क्या बोल रहा है कि कैमल को हम लोग बोलते हैं कि डेजर्ट में बहुत यूज़फुल एनिमल है एंड कैमल इज़ ऑल्सो नोन एज अ शीप ऑफ द डेजर्ट बट वी नीड टू नो वाई डू वी कॉल कैमल अ शीप ऑफ द डेजर्ट. इसके पीछे कैमल के कुछ बायोलॉजिकल अडेप्टशंस है बिकॉज कैमल ने ऐसे कुछ अडेप्टशंस ऑलरेडी मतलब अडेप्ट कर चुके हैं जिसके वजह से वो ईजीली डेजर्ट क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं. So they are, first है they have long eyelashes and the thick eyebrows to protect their eyes from the dust blown by wind. फर्स्ट है कि कैमल्स का जो eyelashes होता है एंड कैमल्स का जो eyebrows होते हैं वो बहुत थिक होते हैं एंड eyelashes बहुत लॉन्ग होते हैं जो क्या करता है कि इसके आइज़ को प्रोटेक्ट करता है जब सैंड ड्यून्स आते हैं या सैंड स्टॉर्म्स आते हैं तो उसमें जो डस्ट या धूल जो भी उड़ के आता है तो वो उसके आँख तक पहुँच नहीं सकता है. सो दिस लॉन्ग आई लैशेज एंड थिक आईब्रोज प्रोटेक्ट कैमल्स आइज फ्रॉम डस्ट blown by the sand or blown by the wind. Next is their ears are covered with hair to keep out the dust and sand. सेकेंड है होता है कि कैमल्स का जो कान होता है कान में बहुत सारे हेयर्स रहते हैं जिसके वजह से उसके कान को भी ये हेयर्स प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसमें सैंड अंदर ना जा पाए. नेक्स्ट इज दे हैव नॉस्ट्रिल्स विच ओपन एंड क्लोज टू दैट द सैंड डज नॉट गो अप देयर नोज. कैमल्स के नोज़ में एक नॉस्ट्रिल बोल के एक चीज़ होता है जो क्या होता है कि ओपन एंड क्लोज होता है. ये तब ओपन होता है जब सब कुछ नॉर्मल रहता है लेकिन तब ये क्लोज होता है तब जब वहाँ पे सैंड आ सकता है मतलब सैंड उड़ के जब आने की कोशिश करता है तो तब ये नॉस्ट्रिल्स बंद हो जाता है तो उसके नाक में सैंड नहीं पहुँच सकता है. Next is they can go for weeks without water and several months without food. They can drink up to 46 liters of water at once. Camels can walk for week without water and a month without food. And camels एक बार में 46 liters of water पी सकता है. तो ये एक्चुअली क्या होता है कि इसके वजह से कैमल्स के शरीर में ये वाटर स्टोर हो जाता है तो इसके वजह से वो for so many weeks camels can walk. They store fat in their hump which provide them with energy. और camels का जो hump होता है वो actually वहाँ पे hump में camel अपना fat को store करते हैं जो उसको energy देते हैं इसीलिए a month without food camels can walk. So these are the reasons that is why we can call camel the sheep of the desert. अपार्ट फ्रॉम कैमल्स वहाँ पे और भी कुछ एनिमल्स देखने को मिलते हैं जैसे लिजर्ड, स्नेक्स, mice, animals like antelopes, gazelles, hares, hyenas, snakes and desert foxes are also found here. और इसके अलावा यहाँ पे बहुत तरीके की इंसेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं. So this was the wildlife of hot desert region. Next is the human activities. The hot deserts have a thin human population since the living conditions are extremely harsh. The chief occupations practiced by the people in hot deserts are animal rearing, mining and trading. Some people cultivate crops like wheat, maize, barley, millets and cotton. बोला जा रहा है कि हॉट डेजर्ट में एक्चुअली ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है ड्यू टू इट्स हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस. यहाँ की चीफ ऑक्यूपेशन है एनिमल रेयरिंग, माइनिंग एंड ट्रेडिंग. इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत कल्टिवेशन होते हैं जैसे वीट, मेज़, बर्ली, मिलेट्स एंड कॉटन जिसमें वाटर थोड़ा कम लग सकता ऐसे ही कुछ क्रॉप्स यहाँ पे कल्टिवेट होता है. The Sahara is a hot desert and the largest desert in the world. It covers almost the whole of North Africa. It stretches from Atlantic Ocean in the west to the Red Sea in the east. 1/4 of the Sahara is covered with stretches of sand and small hills-like formations known as sand dunes. Due to the scarcity of water and extreme climatic conditions, very few plants grow in Sahara. तो क्या बोल रहे हैं कि सहारा डेजर्ट इट इज़ अ वेरी वेल नोन डेजर्ट. दिस इज़ द
लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड एज वेल एज इट इज़ अ हॉट डेजर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा नॉर्थ अफ्रीका कवर करके ये पूरा डेजर्ट है। इनफैक्ट ये जो डेजर्ट है, ये डेजर्ट रीजन अटलांटिक ओशन की वेस्ट से लेके रेड सी इन द ईस्ट तक मतलब स्ट्रेच्ड है। मतलब इसके वेस्ट में है अटलांटिक ओशन एंड ईस्ट में है रेड सी। 1/4 ऑफ द सहारा डेजर्ट पूरा सैंड से कवर्ड है एंड यहाँ पे स्मॉल हिल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। पानी बहुत कम होने की वजह से एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से यहाँ पे पानी बहुत कम ही मिलता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लांट्स भी बहुत कम ही देखने को मिलता है। The Bedouins are nomadic people who move from place to place within the Sahara Desert looking for water and pastures to graze their animals. Lake Chad is the only freshwater lake in Sahara. The Sahara Desert is rich minerals like iron ore, copper, petroleum and natural gas. The highest volcanic peak in the Sahara is Emi Koussi. तो क्या बोल रहा है कि बेदुइन्स सहारा के जो नोमैडिक पीपल है जो यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, दे आर नोन एज बेदुइन्स। ये लोग बेसिकली वाटर एंड पास्ट्यूर्स के लिए ही इधर मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करते रहते हैं। सहारा में एक ही फ्रेश वाटर लेक है दैट इज़ नोन एज लेक छड। सहारा डेजर्ट में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जैसे आयरन ओर, कॉपर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और यहाँ पे एक हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक भी है विच इज़ नोन एज एमी कुसी। So class 5, please go through this text along with this explanation. Thank you.